لبيك يا حسين 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 لبيك يا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج تیسرا روز کافی دیر سے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں اور ابھی 327 پہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے. پچھلے روز رات وہیں قیام کیا اور آج صبح نکل رہے ہیں. اب جو بھی مناظر کل کی طرح جو بھی پیش آئے تھے اور ہم نے آپ کو دکھایا تھا, آج بھی جو بھی منظر ہمیں دکھائی دیں گے ایسے جو آپ کے اندر کیفیت پیدا کر سکیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جیسے کل تعداد تھی لوگوں کی جاتے ہوئے نجف سے کربلا, آج بھی ہے, کل بھی رہے گی, پرسوں 40 کے دن تک رہے گی اور یہی پھر سفر واپس ہوگا. لوگ اپنے اپنے ملک کی طرف, اپنے اپنی سرحدوں کی طرف, اپنے اپنے گھر کی طرف لوگ واپس چلے جائیں گے. واقعی مجھے یاد آ رہا ہے, اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے, واقعات کو دیکھا جائے, امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی تھی, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, نصرت کو آئے. اسی حوصلے کے ساتھ, اسی جوش کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ, اسی امام کی خواہش کے ساتھ آج ہم لوگ پیدل چل رہے ہیں. مولا اس دور میں تو ہم نہیں تھے مگر ایک آواز آج دے کے دیجئے, انشاءاللہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی ایک آواز پہ اپنے دل کو بچھا دیں گے, اپنے دل کو نچھاور کر دیں گے, اپنی جان کو نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. دلسوز مناظر اور کچھ ایسے مناظر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کو دیکھ کر کے واقعی آپ کا دل مچل جائے گا اور آپ کا بھی دل چاہے گا کہ ہم کربلا کی زیارت کے لیے بہت جلد آئیں. اور یہی بار بار ہم دعا کر رہے ہیں جو ناظرین ابھی تک نہیں آئے وہ کربلا کی زیارت کے لیے جلد سے جلد انشاءاللہ مولا نے چاہا تو تشریف لائیں گے. ملاقات ہوگی. السلام. سنو زوار حسین ابن علی, ایک مظلوم کی آواز بلاتی ہے تمہیں, آؤ نام تم. ناظرین, چونکہ نجف سے کربلا جانے والا ہر زائر اپنے ساتھ میں ایک بیگ ضرور لیے رہتا ہے جس میں وہ اپنی ضرورت کے سامان کو رکھتا ہے. اگر چلتے چلتے بیگ کی سلائی کہیں سے کمزور ہو جائے یا بیگ پھٹ جائے یا کسی بھی طرح سے اس کا نقصان ہو جائے تو درمیان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اس بیگ کو درست کرنے کے لیے لوگ اس طرح سے خدمت انجام دے رہے ہیں. ہوگا راضی خدا انشاءاللہ. بہرحال ایسے مناظر تو بار بار دیکھنے کو ملتے رہے جو ہماری گھٹی ہوئی قوت کو بڑھا دیتے ہیں کہ جب معذور انسان نہیں رک رہا اور چلتا چلا جا رہا ہے تو ہم بھی کیوں رکیں, ہم بھی اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. وطن سے محبت تو ایمان کی نشانی ہے. یقیناً اس لاکھوں اور کروڑوں کی بھیڑ میں جب اپنے ملک کا پرچم نظر آتا ہے تو ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے. ایمان حسین میری جان حسین, قرآن حسین میری پہچان حسین, اللہ واللہ یا حسین, اللہ واللہ یا حسین. Viewers, let's talk to Brother Ali from Lebanon. Brother, Salamun Alaikum. Salam. How do you feel being present, being the part of the Arba'in walk? Well, this walk and this adventure about Imam Hussein and walk from Najaf to Karbala, it's about our feeling, our sensitivity about what happened for Imam Hussein, and to remember Sayyidah Zainab alayha salam, how it walked from Karbala to Sham to Syria, to see how the conflict and the issues that are based for Sayyidah Zainab, and to feel her feeling and for crying for her Imam Hussein, and to know the passions that we are feeling from Najaf to Karbala. It's a big thing. It's a big thing.
What do you learn? Like, what kind of feelings cross your mind when you are on the walk, on this spiritual journey? Patient, just patient, and to know that Imam Hussein do everything just for us, and to know this walk, all these people are coming for one person, Imam Hussein. Thank you so much. हर कदम फर्श मातम बिछाते चल मेडिकल कैंप बार बार नज़र आते थे और वहाँ भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती थी। जाहिर सी बात है, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, हर तरह के लोग थे, तो कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो तो ये दुश्वारी ना हो कि अभी 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक मेडिकल कैंप है। नहीं, हर 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपको मेडिकल कैंप अलग अलग ममालिक के लोग लगाए हुए मिल जाएंगे। फर्श आजम से अफजल है ये लोग चलते चलते थक गए हैं, अब इनकी थकान को इस तरह से मसाज पे देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे पीछे कैमरामैन दिखाएंगे, ये तुर्क वालों का मौक़िफ़ है और वहाँ से उतनी दूर से आए हुए लोग यहाँ पर आकर के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और वाकई मुल्क के गोशे गोशे से, किनार किनार से, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और ज़व्वार के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए वहीं पर मैं आपको कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूँ, इसके पीछे वाला जो मौक़िफ़ है बैक साइड पे, वो गालिबन आज़रबाईजान, जी आज़रबाईजान के लोग हैं जो वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कदम कदम पे यहाँ पे जो पिलर्स लगे हुए हैं जिस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, हर पिलर के सामने 1 या 2 मौक़िफ़ हैं जो ज़्यादातर तो इराक़ के हैं, लेकिन दीगर ममालिक वाले भी आकर के अपने यहाँ पे आकर के एक फ्लैग लगाते हैं और लगाने के बाद ज़व्वार इकराम, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़व्वार वहीं का हो जहाँ के लोग हों। मसलन इंडिया का अगर यहाँ पे मौक़िफ़ है तो ज़रूरी नहीं है कि इंडियन आए, बल्कि हमने खुद जाकर के देखा वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, इराक़ी, ईरानी, तुर्क, लेबनान, बहरैन, हर जगह के लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के भी लोग यहाँ पे दिखाई दिए, हमें इंटरव्यू से मना किया उन्होंने, और इंडोनेशिया के लोग दिखाई दिए। उसके अलावा यहाँ पर हमें अफ्रीका के लोग दिखाई दिए, बहुत से अलग अलग ममालिक के लोग हैं जो गिरोह दर गिरोह आ रहे हैं और ग्रुप में ज़्यादातर लोग आते हैं और आने के बाद खराज अक़ीदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन किराम, जहाँ मौके पे अभी हम बता रहे थे वहीं पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेगी है, अच्छा है, ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर फ्रॉम जर्मनी for TV and we check this program and we recording for TV, Turkey TV. Which channel? Under TV and Hadi TV and Turkey Harita TV. Say about Arbain. Alhamdulillah, is very good. This Arbain is for Imam Hussein. We coming and we make to people, we recording this. Aga selamu aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Turki. Evet, ben Türk'üm. İlk defa Erbeyin'e geldim. Gerçekten anlatılacak gibi bir şey değil. İnsanların bunu yaşaması gerekiyor. Yani anlatılmayacak bir duygu. Çok güzel bir duygu. Ben çok etkilendim. Bu kadar bir kalabalığın bir insan için, yani İmam Hüseyin için böyle bu aşkla yürümesi gerçekten beni çok etkiledi. Size de teşekkür ederim. तो नाज़रीन, बहुत कुछ तो समझ में नहीं आया, मगर इन्होंने इजहार किया है अपनी ज़बान में। तो नाज़रीन, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से मुलाकात करवाते हैं। खुदा हाफिज़। चलते चलते लोगों के पैरों में वरम सा आ जाता
brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You're from? I am from Indonesia. Indonesia. What do you have to say about the Arba'in walk, about the spiritual journey? Dalam rangka Arba'in ini kita menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Imam Hussein alaihissalam, jauh-jauh datang ke Karbala dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dan Ahlul Bait, khususnya Imam Hussein alaihissalam. Shukran. ये एक छोटा सा खैमा ज़रूर है IVT ग्रुप वालों का, जो कि शहर मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर मुंबई में भी खिदमत अंजाम देते हैं और अरबईन में कहते थे, मगर हाय कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। हौसला बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा। यकीनन ये सफ़र इश्क से भरपूर, मारिफत से भरपूर सफ़र है। आइए एक ऐसे शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो उत्तर प्रदेश, यूपी, बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है। मुलाकात करवाते हैं, ख़ुद उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि भाई ने बताया कि 4 साल हो गया कैंसर हुए 215 जी 215 में कैंसर 4 अप्रैल को 2015 में कैंसर हुआ था। 4 अप्रैल को ऑपरेशन भी हुआ जी, ऑपरेशन भी हुआ है और आज तक सिर्फ लिक्विड पर है, जिंदगी गुजर रही है। 2015 से लिक्विड पर है, फ़कत लिक्विड पर। और वाकई अब जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो आंखों में आंसू पैदा कर देगा। किस जज्बे ने, किस जोश ने, किस वलवले ने, किस चीज़ ने आपको उभार दिया? मेरा इरादा जब से हुआ था कि जब जाएंगे, और आज पूरे घर के खिलाफ हम सफर पर निकल गए। पहली दफ़ा आपका है अभी तक की ज़िंदगी में? दूसरी दफ़ा। मगर इस हालत में पहली दफ़ा है? पहली दफ़ा। देख रहे हैं नाज़रीन, आप इस हालत में भी पहली दफ़ा है। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है कि जी आगा आप। दूसरी चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, हम लोग कुवैत से आ रहे हैं। मैं हामिद इनके शहर के हैं, और आप जैसा हमारे को कॉल करके बोले कि मैं भी आऊँगा नजफ़ को, तो हम वहाँ पैदल चलेंगे वहाँ से करबला को। तो इन्होंने बोले बीमार हैं मतलब कोई बात नहीं, चलेंगे, जैसा भी हिम्मत करके साथ लेके चलेंगे हम। ये पैदल चल रहे हैं, क्या व्हील चेयर है या पैदल जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। करबला तक पैदल जाएंगे? करबला तक जाएंगे, नजफ़ से आ रहे हैं। मैं महसूस ना कीजिएगा नाज़रीन, खुदा न खास्ता कुछ हो गया आपको तो कुछ नहीं, उसके लिए तो निकलेंगे। अगर मौत करबला में आए तो इससे बेहतर मौत क्या है। हमारे को के अगर से मेरे को कुछ हुआ तो यहीं दफन कर देना, मैं चलूँगा साथ तुम लोगों का। ये आपने वसीयत कर दी? जी, अगर कुछ हो जाए तो मुझे आने, हम दोनों साथ हैं उनके। इससे अच्छी मौत हो क्या सकती है। बहुत खूब। बस बेशक नाज़रीन, ये करबला वालों का हौसला है, ये करबला वालों का जज्बा है, उन्हीं की ज़बानी। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से जब पूछा, बाबा हम हक़ पर हैं कि नहीं हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बेटा
बेशक हम हक पर हैं, तो हज़रत अली अकबर सलाम ने कहा था फिर हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जज्बा, ये जोश कुछ हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर का ख्याल आता है आपको इस एज में? हर कदम कदम पे सोहराए करबला का ख्याल आता है। जो जज्बा हमें वहाँ से मिला है वो जज्बे के तहत हम करबला जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। नहीं, सवाल ऐसा है कि मैं खुद कभी कभी नहीं बोल पाता हूँ। सन 61 हिजरी का बर्दाश्त के बाद आप चलते हुए आधे रास्ते तक आ गए हैं। असीराने करबला का सफर याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, यही उसी का जज्बा है, जनाब ज़ैनब का जज्बा है कि हम उनके साथ जा रहे हैं और सारे रास्ते जो है बच गए। लब्बैक या हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। हमें बार बार खाना और पानी, पैर दबाने वाले, मसाज करने वाले मिल रहे हैं, कुछ आपको एहसास हो रहा है? एक बार हमने नहीं, कई जगह हम लोगों को मिले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई असीराने करबला की याद आ रही है, कैसे काटे चुपके हर कदम पर उनसे बड़ा मसाइब दुनिया में कोई किसी पर नहीं गुजरा। शायद वही जोश है जो आपको इस बस काम पर आमादा कर रहा है। बस। तो नाज़रीन, आपने देखा ऐसे बहुत से लोग हैं, ये तो हमारी ज़बान के थे, मुलाकात हो गई। न जाने कितने ऐसे बुजुर्गवार हैं जो बीमारी की हालत में डॉक्टर ने चलना मना किया है, डॉक्टर ने ज़्यादा देर तक बैठना मना किया, मगर उसके बावजूद भी ये सफ़र इश्क है, सफ़र मारिफत है। ये अल्लाह का करम है, उसकी मारिफत शामिल हाल है, उसकी मर्ज़ी शामिल हाल है, और इस तरह से निकल पड़े हैं काफ़िले करबला की तरफ, या यूँ कहूँ कि सफ़र इश्क से अपने आप को मिला रहे हैं। हमारे साथ बने एक घर का फर्द भी जवान मौजूद है। अपने माँ बाप को इस पाक सफर में लाओ, अपने बच्चों को भी नाज़रीन, एक बहुत बुलंद पिलर हमें दिखाई दिया जिस पर बहुत से परचम लगे हुए थे। दूर से देखा तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब करीब गया
تو آپ دیکھیے آپ خود سمجھ جائیں گے۔ جی ہاں، تقریباً ہر ملک کا پرچم اس پلر پر لگایا گیا ہے، مگر سب سے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہ سچ ہے کہ کسی بھی ملک میں بغیر اجازت کے ہم اپنے ملک کا پرچم نہیں پھہرا سکتے، مگر چونکہ پرچم حسین کے نیچے آنے والا ہر انسان عزادار حسین ہے، لہذا چاہے وہ اب کسی بھی ملک کا ہو، وہ آج حسین کا مہمان ہے۔ اب اس پلر پہ آپ اپنے ملک کا پرچم تلاش کیجئے۔ یہ لیجئے، ہمیں تو اپنے ملک کا پرچم نظر آیا۔ یہ ہمارے ملک کا ترنگا جو ہواؤں میں لہرا رہا ہے اور ہمیں ہمارے ملک کی یاد دلا رہا ہے۔ جہاں مرد حضرات روٹیاں بنا کر کے لوگوں کی خدمت میں تقسیم کر کے خدمت انجام دے رہے تھے، وہیں خواتین کا بھی ایک گروہ اس خدمت کو انجام کرتا ہوا دکھائی دیا، جیسا کہ خود آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی خدمت، چھوٹی سے چھوٹی خدمت بھی یہاں انجام دینے والے موجود ہیں۔ یقیناً جب انسان اپنے ملک سے نجف کا رخ کرتا ہے اور پھر وہاں سے کربلا کا رخ کرتا ہے تو کئی دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اگر اس دوران ناخن بڑھ گیا ہے تو اس سے کاٹنے کی سہولت بھی یہاں موجود ہے۔ بہت سے موقف کے باہر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں ساؤنڈ سسٹم رہتا ہے کہ جس میں یا تو نوحے یا تو کربلا والوں کے مسائل لوگوں کو سنائے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ سفر ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کا دل بھرا ہوا رہتا ہے، اسے ذرا سا بھی مصائب سننے کو مل جائے تو وہ دل کھول کر کے حسین ابن علی کا ماتم اور گریہ کرتا ہے۔ ناظرین، خواتین کا نقاب، ان کی عبا، اگر چلتے چلتے کہیں سے کوئی سلائی ہلکی پڑ جائے یا کھل جائے یا کہیں سے کچھ نقصان ہو جائے تو اس کو بھی درست کرنے کے لیے لوگ موجود رہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوتے اور چپلوں کی مرمت کی جا رہی ہے، مگر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، کوئی فیس نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی پیسہ نہیں، سب فری میں ہے، بس زوار کی خدمت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر ہیں جو نجف سے کربلا تک پیدل جا رہے ہیں۔ یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان شہداء کی ہے جو دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنہیں شہادت کا درجہ ملا ہے۔ تو دوران سفر یہ ان کی تصویریں نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر بھی اس جوش کو پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں سفید موت نہیں چاہیے، یعنی بستر پر لیٹے لیٹے، بلکہ ہمیں سرخ موت چاہیے کہ اسلام کی راہ میں کچھ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ لہٰذا اپنے ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں، ایک سورہ فاتحہ ان شہداء کو ضرور ہدیہ کر دیجیے۔ درمیان میں بہت سے انڈین موقف بھی دکھائی دیے جہاں پر انڈیا کے لوگ بڑی تعداد میں نظر آئے۔
इकराम, इस वक्त हम मौक़िफ़ नंबर 820 पे हैं। जाना ही चाहते थे कि खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अल मूसवी साहब मौजूद हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आगा क्या कहना चाहेंगे, लाखों करोड़ों का मजमा है जो नजफ़ से करबला की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इश्क का सफ़र कर रहा है, अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। मुख्तसर अगर कहेंगे, एक ज़िंदा मुअजिज़ा सबके सामने हो रहा है। सारी दुनिया में ऐसा मजमा नहीं हो सकता मगर सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महब्बत के लिए करोड़ों लोग जमा होते हैं सारी दुनिया से, महब्बत अहल बैत की महब्बत की वजह से। ये एक बात है। दूसरी बात, लोग कहते हैं इस्लाम कहा अमली तौर पर, बहुत मुसलमान नाम के मुसलमान हैं मगर उनके काम इस्लाम से दूर है। आज आइए इधर और देखिए, इसी करोड़ों मजमा में हकीकी इस्लाम के अखलाक, महब्बत, ताउन बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर सब लोग जो इधर आ रहे हैं हब्ब हुसैन की वजह से आ रहे हैं, इसलिए आप देखते हैं हकीकी इस्लाम के नमूना यही है। कितने करोड़ लोग हैं, जैसे भाई भाई और बहन बहन, इतने सखावत, इतने करम। आपने देखा अभी चंद दिन एक कोई इख्तिलाफ नहीं है, चूँकि सारे लोग यहाँ पर जो आए हैं सब हब्ब हुसैन की वजह से। यहाँ पर दुनिया आ जाए और देख ले हकीकी इस्लाम के अखलाक है। इस्लाम ज़िंदा है हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े से। ये सवाल हम करना चाहेंगे, एक पैगाम पहुँचेगा हमारे नाज़रीन तक। अक्सर दूसरे कौम के लोग भी कहते हैं कि ये इतने दूर तक 5 दिन 6 दिन चल के जाना, जबकि सवारी, बसें, गाड़ियाँ सब कुछ खड़ी हुई हैं, फ्री में ले जाने के लिए खड़ी हुई हैं, तो ये एक वो दूसरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि क्या पागलपन है या कैसा है, ये क्यों चले जा रहे हैं, बल्कि आराम से जाएं तो आराम से जाएंगे और अच्छी बात है। क्या कहेंगे? अरे ये लोग जो एतराज़ करते हैं उनके पास हकीकी और मुकम्मल अक्ल नहीं है, वरना सारे मुसलमान खाने और सब गज़ा के बावजूद रोज़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं रोज़ा? तो खा ले। ये इंसान की तरबियत के लिए हम पैदल से आते हैं ताकि हमारी तरबियत हो जाए, ताकि हमको भी ज़रा से क़ुरबानी देने का मौका मिले। इसलिए पैदल से चलना इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए अज़ीम सवाब है। हर कदम पे अज़ीम सवाब है। और मैं ये कहता हूँ भी, अगर आपको दुनिया में जन्नती लोग देखना है तो आइए यहाँ पर देखो। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सवाल जो मैं कई लोगों से कर चुका हूँ और वो सवाल करते हुए मैं मुकम्मल नहीं कर पाता, मगर आप समझ जाएंगे। आप भी काफ़ी चलते हुए आ रहे हैं। सन 61 हिजरी का असीरों का काफ़िला याद आता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो पैदल से चलता है और याद करते हैं कि उस काफ़िले के ऊपर क्या हुआ, उनकी ख़वातीन के ऊपर क्या हुआ, उन सैदानिया के ऊपर क्या हुआ। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये अपने आप में बहुत बड़ी हकीकत है कि नहीं बोला जा सकता। बस आगा से हम चाहेंगे कि जो ज़व्वार अगली दफ़ा आएंगे और ये प्रोग्राम देखेंगे, उनके लिए क्या पैगाम है, ये हम पूछना चाहते हैं। आगा, पैगाम ज़व्वार इकराम के लिए। ज़व्वार आते हैं जन्नत के लिए, तो ज़ियारत की नूर लेके वापस चले। ज़ियारत की नूर अखलाक है, खुलूस, इबादत, अमानतदारी। यहाँ पर ज़ियारत करने के बाद एक नई ज़िंदगी मिलती है, चूँकि रवायतों में है ज़व्वार के सारे गुनाह बख्श देते, यानी मग़फ़िरत होती है, तो नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। इसलिए ज़व्वार यहाँ से ज़ियारत करके वापस जाए अपने वतन, एक नया इंसान
ہونا چاہیے. بہت خوب. تو ناظرین اس طرح سے آپ نے دیکھا مولانا موسوی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بہت سی نیک باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی علماء کرام سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ایسی ایسی باتیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. فی الحال اجازت. السلام. تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور اس سفر عشق میں آپ کو بھی لے کر نجف سے کربلا تک پیدل چلیں گے اور جو مناظر ہوں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اجازت دیجیے. والسلام. خدا حافظ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین.